Okay, let's just right. Okay, inshallah. I'll try my best. ठीक है. आज के topics जो हैं, especially the one with CVS, it's one of the one of those where there's like a lot of things happening. So we can try to figure it out. Okay. So at any point, अगर आपको कुछ ना समझ आए, you can ask me. Okay. All right, I'm just going to read out the scenario. This is the Supply 2019 M1. A 50-year-old hypertensive male presents with pain behind the breastbone occurring on exertion with radiation to the left arm. A, what are the three most likely diagnoses? Name 3 stress tests which can be used to reach the final diagnosis. And B, after a few days, the patient's pain becomes constant, which increases on bending forwards and coughing. He also develops low-grade fever. On auscultation of precordium, there is systolic additional sound. What is now the most likely diagnosis, and what 2 medications can be used for relief of pain? Okay, so in this scenario, first I want you guys to notice that he's 50 years old and hypertensive hai, male hai. These are all risk factors for acute coronary syndrome. Okay? And then he has a classical pain behind the breastbone, which occurs on exertion with radiation to the left arm. So now you're thinking, okay, this is on exertion only. They haven't mentioned anything else. So what is the first thing that comes into your head? 3 के अलावा अगर आप मुझे एक पहला डायग्नोसिस ही बता दें कि आपको क्या लग रहा है? Angina, right? Angina, definitely. And somebody has said unstable angina. So they haven't really mentioned कि अभी उसको rest पे किस तरह का आराम आ रहा नहीं आ रहा. बस on exertion जब कहा है तो हम उसको stable angina कह सकते हैं. ठीक है. Stable because अभी वो है सिर्फ हिलने जुलने पे हो रहा है. जब वो rest पे भी होगा तो फिर हम उसको unstable कहेंगे. Name, acha, 3 most likely diagnoses. Acha, this is where your general kind of bedside wala knowledge comes in, right? आपने सोच लिया ठीक है मे बी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इसको स्टेबल एंजाइना है. अब उसके अलावा भी एक मेल जो है वो इस तरह के पेन जो है मतलब जो रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म हो रही है उसकी वजह से हम कार्डियोवैस्कुलर सोच रहे हैं. उसके अलावा जो हमारे सारे डीडीज थे चेस्ट पेन के इतने सारे थे और अब बिकॉज ऑन एक्सर्शन हो रही है तो कोई ऐसे रीजंस जो एक्सर्शन की वजह से पेन इंक्रीज हो. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को या गर्ड हो सकता है डेफिनेटली ऑन एक्सर्शन के साथ उसका मे बी इतना रिलेशनशिप ना हो या हो भी सकता है गैस पल्मोनरी रिलेटेड कोई पेन हो सकता है एग्जैक्टली. उसके अलावा एनीमिया अगर पेशेंट को है तो उसकी वजह से भी हार्ट मसल को कम ऑक्सीजन जा रही है एट द एंड ऑफ द डे तो हिलने जुलने से एनीमिया में पेन हो सकता है. फिर वहाँ आपके चेस्ट वॉल के मसल्स भी पड़े हुए हैं वहाँ उसके अंदर कोई अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या वैसे ही मसल स्ट्रेनिंग की वजह से मसल पेन हो रहा है फॉर एनी रीजन तो देयर आर लॉट ऑफ डीडीज ऑफ चेस्ट पेन. तो उनमें से आप 2 और यहाँ डायग्नोसिस में लिख देंगे. टॉप पे स्टेबल एंजाइना हो गया और नीचे 2 और आपके चेस्ट वॉल के डीडीज. Can it be any valvular disorder? It could possibly be, but I would highly recommend that you stick to the basic DDs of chest pain because the thing is, with it says on exertion, so actually you could write the valvular disorders as well. There's no issue क्योंकि आप बाकी diagnosis तो list कर रहे हो ना, but 3 most likely के अंदर try to rib fracture pain. या इट कुड बी वो हिलने से भी हो सकता है वहाँ सिंपल इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ डीडीज ऑफ चेस्ट पेन. ये आप लोग ना अपनी बेड साइड में देख लीजिएगा. ठीक है. तो आई जस्ट मेंशन्ड a main like few ones. ठीक है. Name 3 stress tests which can be used to reach a final diagnosis. अब मुझे बताएं 3 स्ट्रेस टेस्ट कौन से हैं जो हम स्टेबल एंजाइना में करते हैं. क्योंकि देखें आप स्टेबल एंजाइना वाले की आप ईसीजी वगैरह करेंगे तो जब उसको पेन नहीं हो रहा वो तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आएगी. तो अब आपने हाँ जी पहले आप एक्सरसाइज ईसीजी कहते हैं उसको स्ट्रेस ईसीजी भी कह सकते हैं. ठीक है. पेशेंट को एक्सरसाइज करवा के ईसीजी लेनी है. उसके अलावा एको ले सकते हैं उसको स्ट्रेस एको कहते हैं. फिर एक्सरसाइज करा के आपने एकोकार्डियोग्राम लेना है. फिर एक क्या होता है फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट. उसके अंदर आप डोब्यूटामीन देते हैं उसके बाद जो है आप उसकी एको करवा लेते हैं. ठीक है.
तो आपके पास 3 होगी, एक एक्सरसाइज ईसीजी होगी, एक आप कह सकते हैं जैसे स्ट्रेस ईसीजी जिसको कहते हैं, एक स्ट्रेस एको हो गई, और एक हमारे पास फार्माकोलॉजिकल जो है वो होगी। फार्माकोलॉजिकल बाय द वे वैसे तो एको लेते हैं यूजुअली, डोब्यूटामाइन एको, लेकिन उसके अलावा आप फार्माकोलॉजिकल के बाद आप ईसीजी भी ले सकते हैं, ठीक है। Yeah, exercise perfusion study. Okay. Let's move forward. After a few days, the patient's pain becomes constant, which increases on bending forward and cuffing. Okay. So notice they've said after a few days. He also develops low-grade fever. On auscultation, there is systolic additional sound. What is now the most likely diagnosis, and what two medicines can be used for relief pain? हाँ, this is pericarditis, ठीक है, because it has an association with a change in the body position. तो bending forward और cuffing के ऊपर वो increase हो रहा है, तो it's pericarditis, ठीक है. तो you can, yes, of course. Okay, we're gonna take like a 2-minute break for the adhan. There's gonna be a lot, by the way, इस time पे. All right, let's get back to this. Where were we? Yes. Okay, after a few days, okay, we've established that this is pericarditis, okay, acute pericarditis. What is now the most likely, what two medicines can be used for relief of pain? So can anyone tell me कि वो दो medications क्या हैं जो acute pericarditis के pain के relief में use होती हैं? Right. Okay. There's somebody has said pericarditis pain gets relieved on bending forward question mark. Right. Let me just clarify the difference between what leaning forward and bending forward means. ठीक है? तो leaning forward and sitting up से ये pain बेहतर होगी because
उन positions में our pericardium is not rubbing against the chest wall. You can think of it like that. Or bending forward is like जैसे हम we bend forward to pick up something, or like how do I describe it? Like your chest wall will be in a certain position. Like I'll just draw a stick man so that you can understand. So this guy, he's sitting. So this is his head and these are his legs. Or he is leaning forward. तो थोड़ा सा वो इस तरह बैठ के आगे lean कर रहा है. एक बंदा है, he's bending forward to pick up something. तो वो ये नीचे हाथ, ये देखो, ये कचरा उठा रहा है वो. ठीक है, इस पोजीशन में उसको चेस्ट पेन होगी, और एक उसको ये लेटा हुआ बंदा, उसको इस पोजीशन में चेस्ट पेन होगी. दोनों केसेस में हमारा जो पेरिकार्डियम है वो चेस्ट वॉल के साथ लगेगा, if that makes any sense. ठीक है, तो this is what a lot of people, including myself, मैंने भी initially जब ये chapter पढ़ा था, question पढ़ा था, तो I was a bit confused about it. तो this is what the concept that you have to understand. ठीक है, कि किस position में patient को pain होगी. Acha, two medicines. So people have said aspirin, indomethacin. Yeah, you can use NSAIDs. Okay, मैं दो डिफरेंस बता देती हूँ. एक हमारे पास जो acute pericarditis है, जो उसके regular causes की वजह से हो रहा है. It could be, it usually like idiopathic होता है, but it could be because of viral illness, or it could be drug induced, etc., etc. तो उसके अंदर हम देते हैं high dose of NSAIDs. उसके अंदर वी कैन हैव इंडोमेथिसिन, एस्पिरिन वगैरह वगैरह. उसके अलावा हम कोल्चिसिन भी देते हैं. ठीक है, और कोल्चिसिन भी देते हैं, और अगर ये ट्रीट ना हो रहा हो तो फिर हम इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं एट द एंड, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में. ठीक है, लेकिन व्हाट आई रियली रियली वांट टू पॉइंट आउट दिस पॉइंट इज कि इसको पहले हो रहा था, हमें लगा इसको ऐसे एंजाइना हो रहा है. ठीक है, इफ दैट एंजाइना हैज डेवलप्ड इनटू एन एमआई and acute pericarditis has become a complication of the MI, तो then NSAIDs are not recommended. उसके अंदर फिर हम देते हैं opiate based analgesia. ठीक है, because अगर हम NSAIDs देंगे तो let me just read out the line from the book. It says NSAIDs and steroidal anti-inflammatory drugs may increase the risk of aneurysm formation and myocardial rupture in the early recovery period of an MI and should be avoided. ठीक है, तो अगर इसको वाकई MI हो गया है, उसकी वजह से इसको acute pericarditis हो रहा है, तो उसके अंदर हम opiate based analgesia देते हैं. For example, we can give morphine, we can give codeine वगैरह. ठीक है, tramadol is a very popular one as well that we tend to use in the clinical setting. तो ये difference मैंने आपको बताना था. ठीक है, and I think I may be wrong, but maybe that's what they're trying to test in this question. कि आपको क्या पता है कि MI के बाद जो हमारे पास acute pericarditis होता है, उसमें NSAIDs नहीं देते, बल्कि opiate based analgesia देते हैं. Repeat कर दें please. अच्छा, acute pericarditis की पहले मैंने आपको कुछ causes बताई थी. पहली cause थी idiopathic, जो सबसे common होती है. फिर post viral हो सकता है, acute MI के बाद भी हो सकता है, यूरीमिया के अंदर हो सकता है. There's a lot of causes. ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट में हम दे रहे थे हाई डोज ऑफ NSAIDs एंड कोल्चिसिन. उसके अलावा अगर नहीं ट्रीट हो रहा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देना है. अगर हमारे पास acute MI के बाद वाली कॉम्प्लिकेशन आ रही है पेरिकार्डाइटिस, तो उसके अंदर NSAIDs are not recommended. इनफैक्ट इनको थोड़ा हम अवॉइड करते हैं. उस केस में पेन के लिए हम opiate based analgesia देते हैं. ठीक है, ओपिएट्स के अंदर हमारे पास वो आते हैं मोर्फिन, कोडीन, ट्रामाडोल, ये सब. ठीक है, बहुत सारे हैं ओपिएट बेस्ड एनाल्जेसिया के अंदर. So this was the basic मतलब I may have like dived too deep into this, but I think it's important for us to know eventually. ठीक है ना, so we're done with this question. Does anyone have any doubts about this? Okay, and some things I also want to mention of the clinical signs of pericarditis. एक तो आपको ये पोजिशनल पेन होता है. ठीक है, सिवियर पोजिशनल पेन, सिवियर प्लूरिटिक पेन कह सकते हैं. ये लाइंग डाउन के ऊपर मैंने आपको दिखाया था, हो सकता है बेंडिंग फॉरवर्ड के ऊपर हो सकता है. ये रिलीव्ड होता है सिटिंग अप या फिर लीनिंग फॉरवर्ड से. ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर लो ग्रेड फीवर हो सकता है. और एक जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको एक हाई पिच्ड स्क्रैची साउंड आएगी. ठीक है, पेरिकार्डियल रब आएगा, या फ्रिक्शन रब कह सकते हैं.
ठीक है, तो ये इसकी कुछ की पॉइंट्स है। तो अब आप क्वेश्चन टाइम में जब भी इस तरह हाई पिच स्क्रैची साउंड या कोई इस तरह फ्रिक्शन रब वाली चीज बताएं तो फिर थिंक ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, right, we're moving to the next question. If anyone has any doubts, मैं इसमें कर देती हूँ। All right. Second question is, a 60-year-old diabetic female presents with gradually increasing breathlessness on exertion. According to her, she becomes breathless while changing her clothes and gives history of breathlessness during sleep, which improves with sitting. What 6 clinical examination findings will you try to look for confirming your provisional diagnosis? And what 2 drug groups must be used in this patient for improvement? What are the 2 treatment options for patients who do not improve with maximal lifestyle modification and drug treatment? Okay, 60-year-old diabetic female hai, old age diabetic, and breathlessness on exertion ho rahi hai. ठीक है, तो this is a classical presentation of which disease? Let's see if you guys, yeah. Okay, this guy seems to have studied this already, which is amazing. So this is congestive heart failure. ठीक है, congestive heart failure की classical presentation है, ये जो history of breathlessness during sleep है, it improves on sitting, और कोई भी थोड़ा सा जैसे change her clothes, थोड़ा सा ऐसे हिलजुल वाला काम हो तो उसके ऊपर breathlessness हो जाना। ठीक है, इसके ऊपर 6 क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स उन्होंने कहा हुआ है, तो मैंने इसको जैसे अच्छा फॉर द सीरियस चैप्टर आई हाईली रिकमेंड कि आप बेड साइड भी देखें साथ साथ। ठीक है, क्योंकि इट विल हेल्प यू आंसर द क्वेश्चंस। तो मैंने इसको लिखा है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन और परकशन। ठीक है, जिस तरह हम एग्जामिन करते हैं। तो इंस्पेक्शन के ऊपर आपको रेज जेवीपी हो सकता है, and you may notice that there is also pitting edema, right? Palpation के ऊपर findings for some reason मैंने यहाँ लिखी भी नहीं है, मैंने main auscultation की findings लिखी हुई हैं। Pathological S3 हो सकती है, S4 gallop आ सकता है। उसके अलावा जब आप auscultate करेंगे तो you may hear crackles and rails at the base of the lungs because pulmonary edema भी होना शुरू हो जाएगा। Then when you percuss the lungs, there will be a dullness to percussion and decreased tactile fremitus. ठीक है, so these are all the things that you may find, clinical findings. So I've written raised JVP, pitting edema, palpation पे लिखा हुआ है displaced apex beat to the left. ठीक है, what is gallop, somebody has asked. This is the type of rhythm I highly recommend कि आप इसको जाके YouTube पे search करके सुने। ठीक है, gallop rhythm is like I don't know how to say, like you know how horses gallop and they make like this really loud sound with force, ये वो रिदम है। और ये इसलिए है बिकॉज हमारे पास जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होना शुरू हो गया है और सारा फ्लूइड हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा है और विद फोर्स आ रहा है वहां पे। अच्छा, इंस्पेक्शन पे था रेज जेवीपी एंड पिटिंग एडीमा, पैल्पेशन पे था डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट टू द लेफ्ट। ऑस्कल्टेशन के ऊपर वी हैव पैथोलॉजिकल S3, वी हैव एन S4 गैलप। उसके अलावा crackles या rails at the base of the lungs. Percussion के ऊपर we will have dullness to percussion and a decreased tactile fremitus. ठीक है, and if there is pulmonary hypertension, so there will be an increased intensity of the pulmonic component of the second heart sound. ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारी चीजें एक लिस्ट कर दी हैं, तो if you want to आप note down कर लें। yeah, फिर B के अंदर what are the 2 drug groups that must be used in this patient for improvement, and what are the 2 treatment options for patients who do not improve with maximal lifestyle modification and drug treatment? हाँ जी, what are the 2 drug groups जो हम दे सकते हैं cardiac failure में, congestive cardiac failure में? Okay, think of there's a lot of fluid. Okay, yeah, somebody has replied. There's a lot of fluid. उसको निकालने के लिए हमने diuretics देने हैं। उसके अंदर हम furosemide देते हैं। आप दूसरे भी name कर सकते हैं। फिर हाँ जी, ACE और ARBs आते हैं next। ठीक है, ACE inhibitors, ARBs। उसके अलावा हम beta blockers भी दे सकते हैं और हम aldosterone antagonists भी देते हैं। ठीक है,
And what are the 2 treatment options for patients who do not improve with अच्छा हाँ अब उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर दी, ड्रग ट्रीटमेंट भी कर दी, नहीं काम आ रहा, इट्स नॉट वर्किंग, आपका हार्ट बस इज नॉट पंपिंग एफिशिएंटली इनफ. तो व्हाट आर द 2 थिंग्स that we can do to help the heart pump efficiently? there's basically अब हम आगे हैं इस तरह डिवाइस वाली चीज़ों पे, ठीक है. जब उन्होंने कहा ना कि ड्रग्स और मॉडिफिकेशन नहीं चल रही, तो आप या तो somebody has written defibrillator, intracardiac defibrillator दे सकते हैं, especially if the patient is presenting with arrhythmias, ठीक है. लेकिन इसकी जो typical device है to help the heart work, it's a ventricular assist device. Okay, it's called a VAD, a ventricular assist device, and it will help your heart pump properly. उसके अलावा we can do a cardiac transplant, which is the absolute last kind of intervention, because अगर आपके left ventricle इतना ज़्यादा dilate हो गया है और वो बिल्कुल non-functional हो गया है, तो at the end you'll have to go for a transplant. उसके अलावा we do have intracardiac defibrillators, या especially जिन patients को arrhythmia के बहुत ज़्यादा chances increase हो जाते हैं, जो इन patients में होते हैं because उनकी heart wall stretch हुई होती है ना, तो उनका rhythm नहीं सही रहता उसमें. उसके अलावा अगर किसी हार्ट के एरिया को वैस्कुलर सप्लाई ठीक नहीं है, उसको आप कॉर्नरी रिवैस्कुलराइजेशन के लिए भी लेके जा सकते हैं, ठीक है. बट जो टिपिकल इसके मुझे मिले थे ट्रीटमेंट्स, इट वाज आइदर अ वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और eventually a cardiac transplant. And then in the exam, if you cannot remember one of these 2, then you can also write intracardiac defibrillator, or you can write coronary revascularization for the areas with decreased blood flow. ठीक है. So we've discussed all the options for this question. Let's move forward. Okay, this next question is not mine. 4, 5. Yes. All right, this question is mine. I'm going to read this out. A 55-year-old male presents with 2 months history of retrosternal pain. Yeah, a 55-year-old male presents with 2 months history of retrosternal pain and reflux of food contents, sometimes reaching to the pharynx whenever he bends forward during prayers. He also has nighttime attacks of cough and wheeze. The physical examination is unremarkable. What is the most likely diagnosis? What are the 3 treatment options available which should be used initially, and what lifestyle advice would you give? Yes. Okay, I'm glad you guys picked this up pretty much instantly. This guy has gastroesophageal reflux disease, or itna usko reflux hai कि his food even wants to come out जब वो bend forward करता है, ठीक है. तो मैं आपको key pointers बता देती हूँ. एक तो उसकी हाँ नाइट टाइम सिम्टम्स किसी ने कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट. नाइट टाइम अटैक्स जो कफ एंड वीज के ना, ये बेसिकली आपका एसिड जब ऊपर आ जाता है ना, तो ये इरिटेट करता है आपके लेरिंग्स को, तो उसकी वजह से आपको कफ और वीज होता है, स्पेशली नाइट टाइम में जब आप लेटे हुए हैं. उसके अलावा ये जो उसका खाना ऊपर आ रहा है सारा, मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो था. Okay, somebody has says nocturnal cough is atypical and indicates severe disease. Thank you for that addition. For me, I had like somehow associated like cough with GERD, but somebody is told that this is not a common symptom, right? Thank you for that addition. Let's move forward. Kya hai? Yeah, reflux of food contents. It reaches the pharynx whenever he bends forward during prayers. ठीक है, तो lower esophageal sphincter जब आपका properly नहीं बंद हो रहा, उसकी tone कम है, whatever the reason for this reflux is, so there will be an issue. Retrosternal pain is a classical symptom of GERD, but retrosternal pain के already हम कुछ DDs पहले discuss कर चुके हैं. It could be cardiac cause, it could be a muscular cause, it could be a pulmonary cause. तो ये जो बाकी जो features हैं उससे आपने उसको differentiate करना है. Likely diagnosis GERD है, and what are the 3 treatment options available which should be used initially? हाँ जी, initially हमने क्या करना है, patient को क्या एडवाइस देनी है या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बताने हैं. एक तो उन्होंने बी पार्ट में दे दिया. हाँ जी, लाइफस्टाइल एडवाइस. अब 2 और मुझे बता दें. हाँ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं,
Yeah, can give antacids, can give H2 receptor antagonists, और उसको dysmotility के symptoms हो रहे हैं, you can give domperidone. Yeah, वो lifestyle modifications के अंदर आ जाएगा ना. Weight lose करें अपना, avoid करें overeating को, try to elevate your head, basically prop up your pillow या फिर have 2 pillows before going to sleep. Avoid करें late meals को, and cessation करें smoking की, ठीक है, stop smoking. And then the absolute last resort would be laparoscopic anti-reflux surgery. Yeah, I think it's called Nissen fundoplication. Correct me if I'm wrong. So these are all the options that you will give to a patient with GERD. ठीक है, तो इनिशियल ऑप्शंस में नंबर 1 लाइफस्टाइल एडवाइस आती है, नंबर 2 आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, और साथ में personally I would give domperidone for dysmotility because his food is coming up, but you can give H2 receptor antagonists or antacids based on what you think. Yeah, partial fundoplication. Okay. Does anybody have any question related to this question? And then we can move forward. अगर नहीं है तो जब मैं ना आगे जाऊंगी, अगर किसी को मसला हो ना फौरन मुझे मैसेज कर दे, तो we can like work on it. ठीक है, we can discuss it. Okay, question number 6. Question number 6 is a 33-year-old female presents with blood in the vomitus. On examination, she's pale with palmar erythema and had positive fluid thrill on abdominal examination. Hanji. 6 emergency management steps you will do, give reasons for each, and after the stabilization, what treatment will you advise to prevent recurrence of the same complication? Palmar erythema, positive fluid thrill है abdominal examination पे, क्या हो रहा है इस patient में? No guesses? Yeah, somebody has said esophageal varices. Yes. Nice. Variceal bleed, chronic liver disease. Yeah. ठीक है, तो what is basically happening is that she has chronic liver disease, जिसकी वजह से उसको portal hypertension develop हो गया है, which is why you find that fluid thrill. ठीक है, और palmar erythema is just is one of the presentations of chronic liver disease. ठीक है, पॉजिटिव, और फिर आपको पता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो फिर आपकी कोलैटरल सर्कुलेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी, स्पेशली जो रेक्टम में है, इसोफेगस वगैरह में है, तो अब उसको हो रहा है वहां पे इसोफेजियल वेरिसेस बन गई हैं और वो हो रहे हैं ब्लीड. तो अब आपने उसकी इमरजेंसी स्टेप्स बताने हैं, 6 इमरजेंसी स्टेप्स बताने हैं, और उसके साथ उसका रीजन बताना है कि आपने ये स्टेप्स क्यों लिए. हाँ जी, तो इफ यू गाइज आर फॉलोइंग विद मी ऑन डेविडसन, ये पेज 869 पे एक बॉक्स बना हुआ है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड जस्ट मेमोराइजिंग दैट बॉक्स. नंबर 1 हमने क्या करना है, वी विल गिव आईवी फ्लूइड्स. ठीक है, आईवी फ्लूइड्स क्योंकि उसने इतना ज्यादा उसका जो वॉल्यूम है वो लूज हो रहा है, तो हमने उसको रिप्लेस करना है उसके एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम को. ठीक है, फिर नंबर 2 पे हम कोई वेजोप्रेसर देंगे जैसे कि टर्लीप्रेसिन, और वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा पोर्टल हाइपरटेंशन को. ठीक है, फिर नंबर 3 जो है हमने उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है. क्यों प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स में हम देते हैं आईवी सेफेलोस्पोरिन, और ये क्यों देनी है, बिकॉज इन पेशेंट्स में जो है ना वो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस का चांस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, इनको मोस्ट प्रॉब्ली उसको एसआईटीज वगैरह ऐसे डेवलप हुई होगी. Right, I didn't explain to you what does everybody know what fluid thrill means, or should I explain it? Just मुझे बता दें. Okay, right, तो उसको already SITs वगैरह हुई हुई है portal hypertension की वजह से, तो उसके अंदर हमारे पास there will be an increased chance of spontaneous bacterial peritonitis. ठीक है, और उसको हमने प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दी, आईवी सेफेलोस्पोरिन. फिर हमने क्या करना है, उसकी इमरजेंसी एंडोस्कोपी करनी है. अब जो अंदर उसकी ब्लीडिंग हो रही है उसको हमने एक तो कंफर्म करना है, और फिर उसके बाद स्टेप आएगा वेरिसियल बैंड लाइगेशन, ये कर देगा स्टॉप ब्लीडिंग को. ठीक है, उसके बाद हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं. दिस इज टू प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर्स, एंड फॉस्फेट एनेमा या फिर लैक्टुलोज देते हैं टू प्रिवेंट
hepatic encephalopathy. So I'll just revise the points again. हमने IV fluids देने थे, replace the extracellular fluid volume. हमने vasopressor देना था, sterlipressin, to reduce the portal hypertension. फिर हमने prophylactic antibiotics IV cephalosporin देनी थी to reduce the chance of spontaneous bacterial peritonitis. फिर हमने emergency endoscopy करनी थी, इससे हमारा confirm हो जाएगा कि variceal bleed है या ulcer का bleed है. उसके बाद हमने variceal band ligation करनी है और ये treatment है which will stop the bleeding. उसके बाद हमने उसको proton pump inhibitors देने हैं to prevent peptic ulcers, and then we will give phosphate enema and lactulose, which will prevent hepatic encephalopathy. See, this is the treatment of encephalopathy, basic one. तो ये हमारे पास वैसे तो 7 steps आ गए हैं, तो इनमें से आप 6 लिख लें टॉप वाले, ठीक है ना? तो ये आपने जो हैं ये याद करने हैं. Right. B, after stabilization, what treatment you will advise to prevent recurrence of the same complication? Hanji, what do you guys think? क्या बैन लाइगेशन करने से उसकी रिकरेंस का चांस बिल्कुल 0 हो जाएगा या हो सकती है रिकरेंस? क्या ख्याल है? हाँ, हो सकती है रिकरेंस. किसी ने लिखा है ट्रीट द कॉज. अच्छा, अगर उसको सिरोसिस हो गया तो फिर उसमें तो मुश्किल हो जाएगा ना ट्रीट द कॉज करना, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा. हाँ, तो हो सकती है, लेकिन पता है अगर आप इसकी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसकी वो कर देंगे ना टिप्स सर्जरी ट्रांस wait, let me figure this out. Transhepatic intrajugular portosystemic shunt. I always say this wrong. खैर टिप्स जो सर्जरी है उसके अंदर वो जो पोर्टल हाइपरटेंशन खत्म हो जाएगी बिकॉज वो लिवर को बाईपास करती हुई जाएगी ना. What will be right in diagnosis? वैसे तो इन्हें डायग्नोसिस पूछा नहीं है, लेकिन एसोफेजियल वेरिसीज, ठीक है. आफ्टर स्टे, हाँ मैंने क्या लिखा है, इट सेज हाँ टिप्स. तो इसमें टिप्स में क्या है कि एक तो आपकी बाईपास हो जाएगा लिवर, तो उस केस में आपकी रिकरेंस जो बहुत कम हो जाएगी. और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि उनके उसके अंदर ना हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है. तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए हम उसका जो डायमीटर है ना शंट का उसको कम रखते हैं. और जस्ट गिव मी अ मिनट. Sorry for the interruption. What was I saying? टिप्स के साथ जो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का चांस ज्यादा हो जाता है, इसके लिए हम जो है रिड्यूस करते हैं शंट के डायमीटर को, ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट दैट. मतलब खैर प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, इवेंचुअली हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी, बट दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन स्टॉप द एटलीस्ट द एसोफेजियल ब्लीड्स, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है. Esophageal varices due to pulmonary hypertension or only esophageal varices? It's up to you. Honestly, अगर उन्हें diagnosis पूछा हो और आपको खास तौर पे पता चल रहा है कि pulmonary tension की वजह से ही मतलब उसकी वजह से esophageal varices बनती हैं, तो you can write that. Absolutely. You can even like work on it like esophageal varices due to pulmonary hypertension caused by liver cirrhosis or whatever you think the cause is. तो आप अपने diagnosis को जितना लंबा करना चाहे कर सकते हैं, but at least make sure you write esophageal varices, ठीक है? So the examiner knows what to tick at that point, right? Somebody has asked PPIs का role यहाँ क्या है? Oh, it's to prevent peptic ulcers.
let's move forward. A 47-year-old female presents with recurrent abdominal pain and fullness associated with increased number of stools. Her pain improves after defecation and the symptoms worsen. There's a word missing. She has some issues with her. Oh, the symptoms worsen when she has issues with her husband. Okay. A, what is the most likely diagnosis? What alarm features must you ask her before starting her treatment? And name any 2 medications used to decrease her stool frequency. हाँ जी, इसको क्या हुआ है? Yeah. Irritable bowel syndrome. Okay, this is a classic presentation of the irritable bowel syndrome. Let me just go to my notes. Okay, and alarm features, किसी को याद है क्या है? Alarm features बताएं. Someone has said no, no, नहीं याद. अच्छा, at this point, I just want you to think कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको लगेगा उसको कहीं malignancy तो नहीं, या उसको कोई serious complication तो नहीं. मतलब GI के अंदर weight loss हो सकता है, bleeding हो सकती है, rectal bleeding हो सकती है, anemia हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा उसको अगर एज मोर देन 50 इयर्स हो या फिर मेल जेंडर हो तो वो भी अलार्म फीचर है. फिर नॉक्टर्नल सिम्टम्स अगर उसको आ रहे हो, हाँ, फैमिली हिस्ट्री हो कोलोन कैंसर की. ठीक है, तो दीज आर सम अलार्म सिम्टम्स. So I'm just gonna read them out again. Age more than 50, male gender, weight loss, anemia, rectal bleeding, nocturnal symptoms, family history of colon cancer. ठीक है. Now there's a criteria for irritable bowel syndrome that I want you guys to just मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ तो आप याद रखें कि आपके क्वेश्चन स्टेम में आपकी हेल्प करेगा. 825. Recurrent abdominal pain. This is the Rome 3 criteria for diagnosis of IBS. So, recurrent abdominal pain or discomfort on at least 3 days per month in the last 3 months associated with 2 or more of the following. Improvement hoti hai with defecation, number 1. ठीक है, improvement होगी with defecation. Number 2 is onset associated with change in the frequency of the stool, and number 3 is onset is associated with the change in the form of the stool. एक तो frequency change हो रही है, उसका form change हो रहा है, और improvement हो रही है defecation में. And most question stems they will mention that the pain improves with defecation, और वो कोई ऐसे stress related आपको symptom बताएंगे. You know, she has issues with her husband, or maybe उसके exams आ रहे हैं, or maybe anything. It could be any of the distressing features. ठीक है. Name any 2 medications used to decrease her stool frequency. हाँ जी, इसमें आप मुझे कोई भी 2 बता दें. Antidiarrheal drugs, कोई भी 2. There's a flowchart on page 826 जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है. I'm glad. Okay, loperamide, perfect. उसके अलावा हम कोडीन फॉस्फेट भी दे सकते हैं, कोलेस्टाइरामीन भी दे सकते हैं. और अगर उसके सिम्टम्स जो हैं वो एंटीडायरियल एजेंट्स देने से भी नहीं सही हो रहे. अच्छा, लेट्स गो सिस्टमैटिकली. अगर उसको मसला हो रहा है तो फर्स्ट आप उससे कहेंगे कि उसका अपनी ना डाइटरी जो एक्सेसिव डाइटरी फाइबर है उसको अवॉइड करें, या आप ट्रायल्स लें ग्लूटेन फ्री डाइट की. बट ये इट्स नॉट कॉमनली प्रैक्टिस. बेसिकली किसी को जब आईबीएस होता है तो सबसे पहले हम उसको एंटीडायरियल एजेंट्स दे देते हैं, लोपरामाइड या कोडीन फॉस्फेट या कोलेस्टाइरामीन. और अगर सिम्टम्स फिर भी ठीक नहीं हो रहे सब करने से तो हम उसको एमिट्रिप्टिलीन या इमिप्रामीन दे सकते हैं, या रिफैक्सिमीन. ठीक है, तो आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस. पहले एंटीडायरियल से ट्राई किया, उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर हमने क्या दिया उसको, एंटी डिप्रेसेंट्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट माइन. ऑलराइट, ये मेरा सेगमेंट था फॉर 2019 सप्ली. नाउ वी आर गोना मूव टू another paper. Just give me a minute.
All right, now we're gonna do 2018 supply. Can everyone see the screen? Okay, perfect. Right, अब मैं ये पढ़ती हूँ और आपने फौरन इसके आंसर देने हैं, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी. A 50-year-old male presents with pain behind the breastbone occurring on exertion to the left arm and sweating. The pain settles when the patient sits down for 5 to 6 minutes. The ECG done during pain-free interval is normal. What 5 groups of drugs can be used in this patient for the relief of symptoms, and give examples from each group, and name 3 stress tests which can be used to reach a final diagnosis. What are the interventional methods of treatment if patient does not respond to the above mentioned drug groups? Hanji, what are the 5 drug groups that are used for? Okay, पहले ये बताएं हो क्या रहा है. सबने आई होप आइडेंटिफाई कर लिया होगा. हाँ, स्टेबल एंजाइना. ठीक है ना. पेशेंट को इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, और उसकी वो, लेकिन जब उसको पेन होता है वो जब बैठ जाता है, रेस्ट करता है, तो उसका ठीक हो जाता है. और पेन फ्री इंटरवल के दौरान जो ईसीजी की वो नॉर्मल आई, तो अब हमें प्रॉपर ईसीजी निकालने के लिए उसको स्ट्रेस देना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए बी के अंदर अगर आप शुरू में नंबर 1 के अंदर फिगर आउट नहीं कर सके तो ऑप्शन बी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि स्ट्रेस टेस्ट किस में देते हैं. अच्छा, 3 स्ट्रेस टेस्ट, आई होप यू कैन रिमेंबर व्हाट दे आर कॉल्ड. 3 स्ट्रेस, एक तो स्ट्रेस ईसीजी हो गया, आपका स्ट्रेस एको हो गया, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जैसे डोब्यूटामाइन एको. और ठीक है, अब हमारे पास 5 ड्रग्स हैं, 5 ड्रग ग्रुप्स. तो दिस इज बेसिक योर बेसिक फार्माकोलॉजी. आप दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसके अंदर से आप निफेडेपिन बता दें. बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, मीटोप्रोलॉल बता दें. नाइट्रेट्स देते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑलरेडी किसी ने आंसर किया हुआ था. फिर पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स देते हैं, उसके अंदर हमारे पास है नाइकोरैंडिल. नाउ दीज आर द लेस कॉमन वंस जो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स हैं, नाइकोरैंडिल. देन ये IF channel antagonists हैं, such as ivabradine, and there's also one कोई sodium channels के लिए जो काम करता है, it's called ranolazine. ठीक है, so these are all the drugs that were mentioned in can be used for the relief of symptoms. अच्छा, somebody has said low molecular weight heparin. अच्छा, the thing is हम इन patients को जो है वैसे normally aspirin भी देते हैं ताकि मतलब coagulation ना हो जाए, और हम इनको statins वगैरह भी देते हैं जो lower करता है lipid के levels को. But because उन्होंने question में पूछा है relief of symptoms, तो अब हमने ऐसे कोई drugs देने हैं या जो vasodilation कर रहे हैं, जैसे कि calcium channel blockers, nitrates वगैरह, या फिर वो हमारे हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये बीटा ब्लॉकर्स हैं. ठीक है ना. तो इस केस में जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली और देखें कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं. अगर उन्हें जनरल इसकी ट्रीटमेंट पूछी होती, डेफिनेटली एस्पिरिन हम देते हैं, हम स्टैटिन्स भी देते हैं, ठीक है. और उन्होंने वैसे डायबिटीज और ये सब कुछ नहीं मेंशन किया, लेकिन अगर किया होता तो हम कहते हैं हाँ डायबिटीज भी कंट्रोल करें, उसकी हाइपरटेंशन भी कंट्रोल करें, ठीक है. तो what are the interventional methods of treatment if the patients do not respond? हाँ जी, स्टेबल एंजाइना अगर ये है, वैसे तो ये बहुत लेस कॉमन है ये इंटरवेंशन स्टेबल एंजाइना में, लेकिन अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा और उसके ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड नहीं पास कर रहा प्रॉपरली, तो व्हाट इज द थिंग दैट वी कैन डू. कॉमनली हम होती है, हम सुनते रहते हैं, या वी कैन डू अ परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है, स्टेंटिंग या हाँ, ठीक है. उसके अलावा हम वेरी लेस कॉमनली कैबेज भी कर सकते हैं, बट आप लिस्ट कर दें, ठीक है. PCI कर सकते हैं, कैबेज कर सकते हैं. परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40-year-old male is feeling palpitations for many months, especially when lying on the left side.
Okay, I want you guys to listen to this scenario carefully and just think. Okay, think real hard. 40-year-old male is feeling palpitations for many months, especially when lying on the left side. Now he presented with shortness of breath for 6 months. He has high volume pulse and apex beat displaced and heaving. First sound is normal. Second sound के अंदर A2 absent है and P2 normal है. There is an early diastolic murmur blowing, best heard in the left lower parasternal area in the third and fourth intercostal space with the patient bending forward. मतलब हमें ये आसानी से सुनाई नहीं दे रहा, हमें patient को bend forward करके सुनना पड़ रहा है. What is the diagnosis? Give at least 4 physical signs on examination of the pulses and enumerate 5 causes of this cardiac lesion. Right. Yes, so absolutely correct. Some people have answered aortic regurgitation, and this is absolutely correct. Okay, this is the classical presentation of aortic regurgitation. Okay, just give me a minute to open up my notes, and then we'll discuss this. Okay. For anyone who's interested, Davidson के page 524 के ऊपर जो है एक box बना हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन की क्लासिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसमें क्या पॉइंट्स आते हैं उसको. वैसे तो पेशेंट जो है वो अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं शुरू में, और सिर्फ एक ही उनके पास चीज़ होती है कि जब वो लेफ्ट साइड पे लाई डाउन कर रहे होते हैं ना, तो उनको अपनी वो फील होती है, हार्ट बीट फील होती है, पैल्पिटेशंस उनको फील होती हैं. ठीक है, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड. अब इवेंचुअली क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होना शुरू हो जाती है. ठीक है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करके भेजना था हमारी बॉडी की सर्कुलेशन में. अब वो जो है वो पंप करते तो वापस आ जाता है. ठीक है, तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर एक तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर हुआ पड़ा है, उसके अलावा वो पंप नहीं कर पा रहा प्रॉपरली ब्लड, जो वो फिर उसको बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए और जोर से पंप करेगा. ठीक है, उसको जोर से पंप करने की वजह से जो है आपके पास जो पल्सेस आएंगी ना, वो बहुत कुछ एग्जैजरेटेड टाइप की पल्सेस होंगी आपके पास. ठीक है, इवन दो इट्स ट्राइंग टू पंप, मतलब वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत जोर से पंप कर रहा है. आई होप दिस मेक्स सम सेंस. तो उसके अंदर आपके पास लार्ज वॉल्यूम पल्स होगी. ठीक है, लार्ज वॉल्यूम, और उसके अंदर पल्स प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा, लो डायस्टोलिक, और बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस होंगी. देन देयर आर सम साइंस जो इसमें डेवलप होते हैं. You can feel capillary pulsation in the nail beds, and this is called Quincke's sign. ठीक है, and you can also hear a femoral bruit, जिसको हम पिस्टल शॉट कहते हैं, और ये है साइन का नाम मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, Deruzier's sign. Then there's head nodding with the pulse Demusset sign. So these are all the things that you might have to study in a little bit more detail to understand exactly what they are. But I tried to explain why it's happening. So you just have to give 4 physical signs on the examination of pulses. So you can write large volume pulse, you can write increased pulse pressure, bounding peripheral pulses, capillary pulsation in the nail beds, femoral bruit, head nodding with pulse. You keep asking me clinical questions. We'll save them up for later, okay? Enumerate 5 causes of this cardiac lesion. Hanji. Aortic regurgitation की सबसे पहली cause आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए वैसे? Okay, somebody has said infective endocarditis, age 40-year-old male है. ठीक है. I personally would go with rheumatic heart disease, but okay, rheumatic disease, infective endocarditis, trauma की वजह से हो सकता है, और any causes of aortic dilation. ठीक है, जो aortic
क्या उसको कहते हैं, बल्ब कहते हैं, कहाँ होता है जहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं, कस्प्स लगे होते हैं, जब वो अगर वो डायलेट कर जाए तो उस केस में भी, जैसे कि मार्फान सिंड्रोम हो गया है, कोई एन्यूरिज्म है, एओर्टिक डायसेक्शन हो रहा है, ठीक है। दिस बॉक्स इज ऑन पेज 524। तो ये इसकी सारी कॉजेज हैं। लेट्स जस्ट गो ओवर देम अगेन। रूमेटिक डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा, any cause of aortic dilation such as Marfan syndrome, aneurysm, aortic dissection. अब तो 40-year-old है इसलिए मैंने उसकी congenital reasons नहीं mention की। congenital reasons के अंदर हमारे पास या bicuspid valve हो सकता है, या cusps जो हैं उसके disproportionate हैं valve के, तो these are also some causes, ठीक है। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट ऑन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड इनिशियली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेथलेसनेस डेवलप होगी, और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो जाता है। Then this murmur over here, जो early diastolic murmur है, जो left lower parasternal area, third fourth intercostal space में सुना जा रहा है, this was like a giveaway point। अगर आपने याद किया है कि कौन से murmur किधर सुनाई देते हैं कैसे, तो this would have given you the answer of aortic regurgitation instantly almost, ठीक है। because जो pulmonary regurgitation है वो इतनी rare है कि हम उसकी तरफ नहीं जाते, ठीक है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर जो है वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हो सकता है या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में हो सकता है, और लेकिन ये जो जिस जगह पे उन्होंने बताया हुआ ना, ये लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया, ये सिर्फ एओर्टिक रिगर्जिटेशन यहाँ सुनाई देता है इसका, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ क्वेश्चन, मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखे एओर्टिक रिगर्जिटेशन के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। पल्स के साइंस रिपीट कर दें, श्योर। पल्स के साइंस, लार्ज वॉल्यूम पल्स होगी, इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर होगा, बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस होंगी सारी, कैपिलरी पल्सेशन फील होगी नेल बेड्स में, इनको कहते, ओके यू नो व्हाट, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती साइन, क्विंकी साइन मैं ये ग्रुप में पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। फेमरल ब्रूई हो सकती है फील, रोजियर साइन, एंड हेड नॉडिंग विद पल्स de Massad साइन, ठीक है। Right, let's go to the next question. A 45-year-old female presents with history of loose motion since last 6 months. Her stools are bulky pale, which float on pan with a frequency of 3 to 4 per day. There's no history of any blood or mucus. She also complains of bone pain, generalized weakness, and significant weight loss during this. On examination, she is pale with edema feet and distended abdomen. What are the 10 initial tests you would perform in this patient? On detailed inquiry, patient says that she feels better when she stops taking roti and only eats fruits and vegetables and rice. What is a single diagnostic investigation you will perform, and what is expected on it? And what dietary advice will you give to her if proven? Right. If you didn't get it with the question stem, part B should have given you a really good understanding of what it is. Hanji, kya masla ho raha hai inko? है, only one person has answered. अच्छा नहीं, 2 लोगों ने कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो जो पेशेंट हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन से बताती हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लूज मोशन सिंस लास्ट 6 मंथ्स हो गया, क्रॉनिक डायरिया, ठीक है। बल्कि पेल फ्लोट ऑन पैन वाले स्टूल, मतलब स्टीयटोरिया, मतलब शी इज लूजिंग फैट, तो यू हैव टू थिंक एट दिस पॉइंट मे बी दिस इज सम मैलअब्जॉर्प्शन हैपनिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई हुई है 3 to 4 पर डे। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ब्लड एंड म्यूकस नहीं है, तो इन्होंने ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और कुछ दूसरी चीजों को रूल आउट कर दिया, ठीक है। अब उनको बोन पेन है, मतलब चले मैल अब्जॉर्प्शन हो रही है, कैल्शियम उसका अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जनरलाइज वीकनेस है, मे बी शी हैज एडीमा, सॉरी एक्सक्यूज मी, एनीमिया, मे बी शी हैज एनीमिया, एंड देन शी हैज सिग्निफिकेंट वेट लॉस, तो पक्का हो गया मैल अब्जॉर्प्शन है। पेल विद एडीमा फीट, ठीक है। एडीमा इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्ब्यूमिन भी नहीं हमारे ब्लड में कम हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन भी नहीं है, उसकी वजह से एडीमा भी हो रहा है। पेल क्यों है? एनीमिया हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन है तो काफी उसको सिवियर हुआ है ये,
ठीक है, शी इज ब्लोटेड रियली बैड. 10 initial tests you will perform on this patient. अब ये भयानक क्वेश्चन है, 10 initial tests, मतलब कौन पूछता है 10, लेकिन चले आप कोशिश करें जितने टेस्ट याद हैं वो लिख दें. हाँ जी, बताएं क्या टेस्ट करेंगे. सीबीसी से शुरू किया है. हाँ, सीबीसी इज अ स्मार्ट प्लेस टू स्टार्ट. हाँ, सीबीसी किया, फिर हाँ ईएसआर किया. सीबीसी पे क्या मिलेगा. शी कुड हैव एनीमिया. ठीक है, ब्लड स्मीयर करा लें. ब्लड स्मीयर के ऊपर आपको वो जो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी या B12 डिफिशिएंसी वाला एनीमिया मिल सकता है. फिर ईएसआर. हाँ, ईएसआर क्या होगा. ओहो, एसिटिक टैप. हाँ, ईएसआर रेज्ड होगा. अच्छा, इसके कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन भी बता दें. एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज हो गया हमारे पास, एंटी एंडोमाइजियल हो गया, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज हो गया. ठीक है, सीरम आईजीए करवा लें आप. उसके अलावा अब हमें पता है कि उसको बहुत ज्यादा मैल एब्जॉर्प्शन है. आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाएं, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम टोटल प्रोटीन करवा लें, सीरम कैल्शियम करवा लें, सीरम विटामिन डी करवा लें, सीरम मैग्नीशियम करवा लें. आई एम जस्ट लिस्टिंग इट लाइक क्रेजी बिकॉज उन्होंने पूछे 10 है. ठीक है. उसके अलावा अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तो आप हाँ एंडोस्कोपी करवाएं, आप बायोप्सी ले लें उसकी. बायोप्सी के ऊपर हमारे पास वो फ्लैटनिंग ऑफ द विलाई आएगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ द क्रिप्स आएगा, और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन आएगी लैमिना प्रोप्रिया की. ठीक है. तो from 1 to 10 I'll just list out all the investigations that I've written. Number 1 CBC, उसके ऊपर हमें एनीमिया मिलेगा. नंबर 2 ब्लड स्मीयर लिखा है मैंने, उसके ऊपर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के फीचर्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स डिफिशिएंट. अगर आयरन डिफिशिएंसी ज्यादा है तो फिर वो वाला एनीमिया मिलेगा. अगर फॉलेट या B12 डिफिशिएंसी ज्यादा है तो वो वाला मिलेगा. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएं, सीरम एल्ब्यूमिन वगैरह करवाएं. फिर स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ चले जाएं. सीरम एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी एंडोमाइजियल, एंटी ग्लाइडिन, फिर सीरम आईजीए चेक करें. उसके बाद आप आ जाएं कि उसको मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो सीरम टोटल प्रोटीन, सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन डी, सीरम मैग्नीशियम. फिर आपने एंडोस्कोपी करके बायोप्सी ले लेनी है. ठीक है. दीज आर ऑल द टेस्ट दैट आई कुड फाइंड फॉर दिस स्पेसिफिक सिनेरियो. अच्छा, ऑन डिटेल एक्सक्यूज मी, बोला नहीं जा रहा मुझसे. डिटेल इंक्वायरी पेशेंट्स. ठीक है, सिंगल डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे. अब इतनी 10 हमने लिस्ट कर दी. अब इसमें से कौन सी हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे पक्का डायग्नोसिस होगा. है, लोग आंसर ही नहीं कर रहे. बताएं ना, ये पता है आपको, मुझे पता है. गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है सीलिएक डिजीज में. हाँ जी, ठीक है, बायोप्सी लेनी है आपने. बायोप्सी के ऊपर क्या मिलेगा फाइंडिंग. फ्लैटनिंग ऑफ द विलाई होगा, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होगा, और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लैमिना प्रोप्रिया. हमारे पास जो एंडोस्कोपी है प्लस एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी जो है, इट इज आवर गोल्ड स्टैंडर्ड. और हमारे पास जो ये एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है, अगर सीरम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो तो इट इज द बेस्ट सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, बट उन्होंने बिकॉज ओवरऑल पूछा है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन पूछा है, तो आप बायोप्सी लेंगे. अगर उन्होंने पूछा था व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन द सीरम, या व्हाट इज लाइक द इन्वेस्टिगेशन सीरम इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस, तो उसमें आप ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज वाली लिखेंगे. ठीक है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड, डाइटरी एडवाइस क्या देंगे उसको. हाँ जी, इसकी डाइटरी एडवाइस इज प्रीटी सिंपल. बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है. हाँ, तो आप पहले उसको स्टार्ट आंसर सिस्टमैटिकली. पहले आप लिखें कि इन्फॉर्म हर ऑफ हर डायग्नोसिस, एक्सप्लेन टू हर कि वो ग्लूटेन नहीं ले सकती और उससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी काउंसिल करें. ग्लूटेन फ्री डाइट उसको रेकमेंड करें, उसको चार्ट दें, डाइट चार्ट दें जिसके ऊपर मेंशन हो कि किस फूड में है, किस फूड में नहीं है. फिर उसको आप वो करें, फॉलो अप के लिए बुलाएं बार बार.
जस्ट टू सी कि उसकी इफेक्ट हो रहा है कि नहीं. उसके अलावा आपने उसकी जो इतनी सारी डिफिशिएंसीज हुई पड़ी हैं, आपने उसको सप्लीमेंटेशन देने हैं. ठीक है. तो वो एक तो अपने फूड से वो इम्प्रूव कर सकती है, वरना वो मल्टीविटामिन्स वगैरह ले सकती है उसके लिए. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक डाइटरी एडवाइस दैट यू विल गिव हर. इफ यू हैव टू कीप इट वन सेंटेंस तो इट्स ग्लूटेन फ्री डाइट. बस इतनी सी बात है. ठीक है. This question is done. Does anyone have any doubts about this? Okay, next पे चलते हैं हम. Question number 6. Yeah, just 2 more questions and then we'll take a long break, inshallah. ठीक है. A 36-year-old female presents with recurrent abdominal pain and bloating for the last 4 months associated with constipation. She used to pass stool alternate day and has to strain a lot for passing the stool, but the pain and bloating improves after passing the stool. There are few episodes of diarrhea occurring in between, but most of the days she is having constipation. What is the most likely diagnosis? What are the alarm features you will look out in her to guide further investigations? Name 2 drugs each for her predominant symptoms of pain and constipation, which you will start initially. What are the other drugs that can be added if she doesn't respond to them? Okay, somebody has already given me the diagnosis. हाँ जी, दूसरे लोग किधर हैं? आप भी diagnosis बताएं. Alternate कर रहा है constipation diarrhea और उसका pain जो है वो improve हो रहा है after passing the stool. हाँ जी. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. परफेक्ट. ठीक है. अलार्म फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड बी पे नेम 2 ड्रग्स. अच्छा, एक तो पेन के लिए 2 आपने बताने हैं और आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए 2 बताने हैं. ठीक है. अच्छा, पेन के लिए हम एंटी स्पाज्मो क्या कहते हैं उनको, जो स्पाज्म कम करते हैं, हायोसिन दे सकते हैं हम, रिफैक्सिमीन वगैरह दे सकते हैं. ठीक है. मीबेवरीन दे सकते हैं. ये बाय द वे पेज 826 डेविडसन पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें सब उन्होंने बताया हुआ है कि पेन के अंदर क्या क्या ड्रग्स हैं. बहुत सारे लिस्ट किए हैं, बट आई एम जस्ट रीडिंग 2 आउट. हायोसिन, मीबेवरीन. एंड देन आप जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए they've written drugs. हाँ, तो फिर आप उसके लिए लिनाक्लोटाइड दे सकते हैं, प्रूकैलोप्राइड दे सकते हैं. उससे पहले लेकिन आपने उसको रेकमेंड करना है कि अपने डाइटरी फाइबर बढ़ाए. ठीक है. इस्पागोल ले या फिर जो लैक्टुलोज वगैरह है वो ले. अगर वो काम नहीं कर रहा, फिर आप उसको ये प्रूकैलोप्राइड और लिनाक्लोटाइड वगैरह की तरफ ला सकते हैं. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और उसकी मतलब नई ट्रीटमेंट हो रही प्रॉपर, तो एट द एंड आपने उसको डिलॉक्सिटीन देनी है. ठीक है. एंड पे आपने उसको डिलॉक्सिटीन देनी है. अगेन दिस इज फ्रॉम आवर द एंटी डिप्रेसेंट्स. अलार्म फीचर्स रिपीट करवा दें. एज मोर देन 50, मेल जेंडर, rectal bleeding, anemia, nocturnal symptoms, and there was one more. मैं खुद भूल गई आखिरी वाला. I hope मैंने उस वक्त weight loss. Oh my goodness, how did I miss that? Thank you. Weight loss. Yeah, these are the alarm features. Let's move to the next question. Right. A 37-year-old. Okay, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने फुल एंथुजियाज्म से पढ़ना है. ठीक है. 37-year-old anti-HCV positive male presents with painful abdominal distension since last 3 days. He has recently come to know about his HCV status and has not taken any treatment for it. On examination, there is tender abdomen with shifting dullness, palpable spleen, spider angiomas, and gynecomastia. You get the fluid out and find in it the SAAG of more than 11 and neutrophil count of 300 है. ठीक है.
What is the most likely comprehensive diagnosis? What treatment should be started immediately? Name the drug for prevention of such a complication. And after recovery, what drug should be started for reducing abdominal distension? How will you confirm presence of virus? Name any uh, four drugs which can be used to get rid of the virus. तौबा, ये A B के अंदर इन्होंने ना तीन सवाल पूछ लिए हैं. अच्छा, let's look at it in detail. पता चल गया कि वो HCV स्टेटस का पॉजिटिव है और उसने उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ली. तो अब HCV बैठा हुआ था उसके लिवर के अंदर और वो कर रहा था उसको खराब. तो उसको हो रहा है लिवर सिरोसिस और मेरा गला भी खराब हो रहा है साथ साथ. उसको हो रहा है लिवर सिरोसिस. ठीक है. अब लिवर सिरोसिस हुआ, वहाँ पोर्टल हाइपरटेंशन भी होना शुरू हो जाएगी और जो बाकी हमारे पास सिरोसिस के जो ये प्रेजेंटिंग फीचर्स हैं, स्पाइरल एंजियोमास, गायनेकोमास्टिया वगैरह, ये सब होना शुरू हो गए. ठीक है. उसको ये एसाइटीज और वैसे और फिर उसका एब्डोमेन हो गया टेंडर. ठीक है. और उन्होंने ये निकाला उसका, तो वो मोर देन 11 था. मतलब मोर देन 11 मतलब हमारे पास एक्सुडेटिव है. लेस देन 11 होता तो ट्रांसुडेटिव थी सिर्फ, जो नॉर्मल लिवर डिजीज में होना चाहिए. नॉर्मल लिवर डिजीज में हमारे पास ये वाला जो रेशियो है सीरम एसाइटीज एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट जो है वो लेस देन 11 होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसुडेटिव है ना, सिर्फ फ्लूइड निकल रहा है. लेकिन अब इसमें मोर देन 11 आ गया, मतलब अब फ्लूइड में कुछ मिला हुआ है. मिला हुआ क्या, उन्होंने देख लिया न्यूट्रोफिल काउंट है ज्यादा, मतलब वहां हो रही है कोई इन्फेक्शन. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस है. इट इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस ड्यू टू लिवर सिरोसिस. ठीक है. तो उन्होंने ना यहाँ पे ना लिवर सिरोसिस मेंशन किया और ना उन्होंने मतलब एसपीवी तो हमने बताना था ना. तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस ड्यू टू लिवर सिरोसिस. What treatment should be started immediately? हाँ जी. Somebody has asked me a very clinical question. Tender abdomen के इस scenario में differentials क्या होंगे? It could be peritonitis due to other causes, perforation की वजह से, rupture की वजह से. That's all I can think of at the moment, but I'll research it and get back to you. Thank you for asking me these clinical questions. Honestly, they really stimulate my neurons. ठीक है. I'll get back to you. What treatment should be started immediately? अब वो बंदे को हो रहा है कहाँ, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के लिए क्या देते हैं हम, एंटीबायोटिक्स. कौन सी देनी है हमने, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है. ठीक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आती है सेफोटैक्सिन, या फिर हम दे सकते हैं पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम. ठीक है. तो अच्छा, इनका जो इन्होंने पूछा ना क्वेश्चन कि अगर पेरिटोनाइटिस ड्यू टू परफोरेशन है, तो जब वो निकालेंगे ना इसका एसाइटिक फ्लूइड का कल्चर करेंगे, तो एसाइटिक फ्लूइड के कल्चर में अगर एक ही आपके पास बैक्टीरिया आए तो यू कैन थिंक ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस. लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया उसमें घूम रहे हो तो फिर आप सोचे हैं शायद परफोरेशन हुई है, क्योंकि गट में सिर्फ एक टाइप का बैक्टीरिया तो नहीं है ना, बहुत सारे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब नेम the drug for prevention of such a complication. Prophylactic हम देते हैं quinolones. ठीक है. नॉरफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं. तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में इन्होंने लिखा था टेक्स्ट में कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है ट्रीटमेंट के लिए, सेफोटैक्सिन या फिर पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम. और प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम देते हैं क्विनोलोन्स, उसमें है नॉरफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन. ठीक है. आफ्टर द रिकवरी होगी तो अब हमने एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करना है. हाँ जी. एब्डोमिनल डिस्टेंशन कम करने के लिए क्या देंगे, फ्लूइड हमने जाया करना है. फ्लूइड कैसे जाया होगा हमारे पास, डाययूरेटिक देंगे. और फर्स्ट लाइन हमारे पास है वैसे तो फर्स्ट लाइन हमारे पास स्पाइरोनोलैक्टोन है, लेकिन स्पाइरोनोलैक्टोन का एक साइड इफेक्ट है पेनफुल गायनेकोमास्टिया. तो पेनफुल गायनेकोमास्टिया ऑलरेडी इस पेशेंट को गायनेकोमास्टिया है, तो हम उसको फिर इस केस में स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं देंगे और उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर विद एमाइलोराइड या फिर विद फ्यूरोसमाइड, जिसको हम लेजिक्स कहते हैं. ठीक है.
तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल सिनेरियो में हम इसको फर्स्ट लाइन के तौर पे स्पाइरोलैक्टोन देते हैं, लेकिन बिकॉज इट्स का साइड इफेक्ट पेनफुल गायनिकोमास्टिया है जो इस पेशेंट को ऑलरेडी हुआ है, तो हम उसको और वो एग्रेवेट नहीं करना चाहते, तो वी विल आइदर गिव एमाइलोराइड या फिर फ्यूरोसेमाइड. इनफैक्ट somebody has answered furosemide and it's a very safe thing to give, क्योंकि अगर आपको डर ये नहीं है कि पेशेंट जो है फ्यूरोसेमाइड इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट डायरेटिक्स, तो ये बहुत ज्यादा आपका फ्लूइड वेस्ट कर देगा. तो अगर आपको ये डर नहीं है ना कि पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, तो आप इजीली उसको बस फ्यूरोसेमाइड दे दें. ठीक है. अच्छा, एंड हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वायरस? हाँ जी, HCV के लिए क्या कराते हैं? कैसे पता चलेगा HCV है? हाँ, किसी ने लिखा है PCR. ठीक है, इसका HCV का RNA होता है, उसको हम PCR कराते हैं. और नेम एनी ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू गेट रिड ऑफ द वायरस. हाँ जी, अब HCV वाले ड्रग्स आप बताएं. हाँ, इंटरफेरॉन अल्फा दे सकते हैं. आजकल जो ज्यादा यूज होता है वो है सफॉस्बुविर, देन राइबाविरिन यूज होता है. उसके अलावा देयर इज वेलपेटासिविर, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत गंदी है, वेलपेटासिविर, एंड देन एट द एंड वी यूज इंटरफेरॉन अल्फा. ठीक है, तो कुछ ये नाम आप जो बेसिक हैं इनके याद कर लें. सफॉस्बुविर, वेलपेटासिविर, राइबाविरिन, इंटरफेरॉन अल्फा. ठीक है, तो I've just listed these out for you. And I think we really deserve a break at this point. So let's take a healthy 10-minute break. We'll be back inshallah at 8:27. How about that? ठीक है ना? Okay, somebody has said antivirals repeat कर दें. Page 878 डेविडसन के ऊपर there is a box और उसके अंदर बने हुए सारे, वैसे मैं names जो मैंने याद किए ना वो आपको बता देती हूँ. सफॉस्बुविर है, राइबाविरिन है, इंटरफेरॉन अल्फा है. उसके अलावा you can remember वेलपेटासिविर and I think that's sufficient है. Yeah, thank you. अब हम break 8:30 तक ले रहे हैं because मुझे extra सवाल आंसर करना पड़ गया.